So in a layman language, whatever activity you do, and while doing that activity, whatever amount of carbon you are generating, that is your carbon footprint. Story that it is not just a story, it's a concept that I say to everyone wherever I go. So you learn to grow and you learn to think in your mother's womb. जितना प्योर वो माँ का गर्भ होगा ना, उतना इंटेलिजेंट और उतना पावरफुल, उतना फिजिकली फिट वो बच्चा होगा, राइट? क्योंकि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले हैं. ऐसा नहीं है कि वो, it's basically your system is clean, you receive everything, you are more receptive, and you learn to be more receptive when you out in the real world, you are actually more receptive by default. So it's a biological setting you are doing around, right? So same way, now you just imagine, आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, उसके अंदर प्लास्टिक है, माइक्रोप्लास्टिक्स है, उसके अंदर केमिकल्स है. So in a way you are blocking those receptors in the system. So हम भी एक रोबोट ही है, हमारे अंदर भी बहुत सारे वायरिंग कनेक्शन है विच आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. किसी इंटेलिजेंट बीइंग ने हमें डेवलप करा है, तो द सिस्टम इज लिटिल कॉम्प्लेक्स. सो नाउ यू जस्ट इमेजिन, एक कार के इंजन में अगर कुछ जम जाता है तो इंजन वोंट स्टार्ट और इट वोंट परफॉर्म एट इट्स ऑप्टिमम लेवल. सेम वे हमारे अंदर कुछ अटक गया है, सो वी आर नॉट परफॉर्मिंग और ऑपरेटिंग एट आवर ऑप्टिमम लेवल, राइट? सो इफ वी सॉल्व दिस इशू, दिस वन इशू, कि हमने उसको एनवायरमेंटल वे में हमने सोचना है, वी थिंक for everyone else, what the concept of what we call Vasudhaiva Kutumbakam. How does it start with that the world is my family? So world is my family. अगर मैं मेरे family के साथ रह रहा हूँ, तो with what is the most secure place to live? That is my home. Now my home itself is poison for me. अगर वो incubation, जो baby को हम जिस incubation box में रखते हैं, that incubation box itself is killing the baby, तो उससे ज़्यादा dangerous तो कुछ हो ही नहीं सकता. And that is what we are doing right now. So by addressing this one issue, we are addressing all the issues. That is the whole concept and aim. I would not just say concept, I would say call it a plan, because they're already working towards it, and there are many people who are working towards it. It is not just about us. What we are trying to do is कि हम NSS वाले हैं, 40 लाख वॉलंटियर्स है पूरे इंडिया में, एंड एवरी ईयर 20 लाख जाते हैं, 20 लाख नए आते हैं, बट वो हमारे रगों में वो कल्चर बैठ जाता है. We have that NSS का culture in our blood. So what we do here is कि we are creating a platform where we like-minded youth. हमारे देश में ना एक problem है where we find excuses to differentiate ourselves or be superficial than the other human, right? यानी सबसे पहला problem आ जाता है religion का. अगर हम वो क्रॉस कर लेते तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है कि स्टेट का, कि ये वो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन काइंड ऑफ अ थिंग, या डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट आइडियोलॉजीज. वो क्रॉस कर लेते तो कास्ट का, इन एवरी स्टेट यू हैव सम और द डिफरेंट कास्ट का इश्यूज गोइंग ऑन. यू क्रॉस दैट, देन यू हैव लिंग्विस्टिक इशू, हिंदी स्पीकिंग, साउथ इंडियन स्पीकिंग, विद दिस दैट. बट NSS is the only organization in India, or you could say across the world, which is serving diversely across the nation, across the languages, across the caste and religion. And when we work together, we don't ask what is your name. वो टी-शर्ट में NSS वॉलंटियर है ना, we don't ask him कि वो कहाँ से आया है, वो कहाँ क्या आइडियोलॉजी लेके आया. वो NSS वॉलंटियर है, he is working for the cause, he is my teammate and we are going to execute it. So what we are trying to do here is create a platform for this circular economy where all the like-minded people are coming around and they are contributing towards the nation building program. So that is what we are looking at right now. All right. Can you, in layman's terms, can you please give a little brief about carbon footprint? Yeah, so basically carbon footprint क्या होता है कि आज मैंने कुछ चीजें खरीदी या मैंने कोई एक्टिविटी करी. आई एम गोइंग फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B, राइट? सो आज मैं प्लेस A टू प्लेस B गया, तो मैंने वहां जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ कपड़े पहने उस इवेंट में जाने के लिए. अब वो कपड़े में मेरा कार्बन कितना कंज्यूम हुआ है उसको प्रोड्यूस करने में, कपड़ा बनाने में, यानी मैंने पानी कितना वेस्ट किया, मैंने कलर कैसा डाला है, उससे मैंने कितना कार्बन मैंने छोड़ा है
सो वो एक फुटप्रिंट हो गया कार्बन का. नाउ आई एम सिटिंग इन माई कार, उस गाड़ी को लेके मैं 20 किलोमीटर चला के मैं पॉइंट बी पे गया, तो उसके बीच में मैंने फ्यूल कितना वेस्ट करा है, दैट इज अगेन एक मेरा फुटप्रिंट हो गया. नाउ आई गो इन दैट पार्टी, उस पार्टी में मैं एयर कंडीशन रूम में बैठा हूँ, बहुत सारी लाइट्स है, सो वहाँ पे 100 जने हैं, तो वो 100 में से इट विल गेट डिवाइडेड बाय 100, और वो जो पहला 100th पार्ट है दैट विल बी माय फुटप्रिंट, बिकॉज आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू दैट इवेंट. राइट नाउ व्हेन आई एम रिटर्निंग बैक ऑन द वे, मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कुछ परचेस करना है, या व्हाइल गोइंग आई बॉट अ गिफ्ट, सो वो गिफ्ट का पैकेजिंग वगैरह, वो गिफ्ट क्या थी, एवरीथिंग इज अगेन मैंने उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में व्हाट इज द टाइप ऑफ या व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फुटप्रिंट दैट मैंने वहां पीछे छोड़ा है. सो दैट इज योर कार्बन फुटप्रिंट. Now what you do is you start reducing it by finding alternatives. यानी मैंने जो एकदम भड़क वाले कपड़े पहने हैं, can I replace it with some simple clothes जिसमें पानी, खादी का कपड़ा, और some simple clothes जहाँ पे पानी वगैरह कम जा रहा है. Now can I use electric vehicle or can I use bicycle? Bicycle तो obviously event में हम use नहीं करेंगे, but can I use public transport? So these are the ways to reduce your footprint. So in a layman language, whatever activity you do, and while doing that activity, whatever amount of carbon you are generating, that is your carbon footprint. Can you please discuss the scams around sustainability? Yeah, so basically there are many things happening around, and those are because of two reasons. One is because of lack of awareness, and second is the hurry to make business out of it or money out of it. So दो चीजें बहुत कॉमन होती है मार्केट में. पहली तो ये होती है कि जैसे फुटप्रिंट का ही बात करें, सो माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल वर आल्सो विक्टिम टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दे आल्सो हैड टू पे ह्यूज पेनल्टीज. देयर आर मेनी कंपनीज दे आर विक्टिम टू दिस ऑडिटिंग, कार्बन फुटप्रिंटिंग वाला थिंग, कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं बट देन वी मिस आउट सर्टेन पॉइंट्स जो हमारे कंफर्ट जोन में है. वी जस्ट डू व्हाट वी थिंक लाइक डूइंग, बट हमारे कंफर्ट जोन में वो नहीं है. फॉर एग्जांपल मैंने आज प्रोडक्ट फुल सस्टेनेबल बना लिया, बट उसका पैकेजिंग वगैरह जो है वो पैकेजिंग मैंने सस्टेनेबल नहीं करा, और वो मैं प्लास्टिक का कर दे रहा हूँ, एंड आई एम सेंडिंग इट टू समवेयर. तो मैंने यहाँ पे शायद 10 kgs ऑफ कार्बन फुटप्रिंट तो कम कर दिया, बट वहाँ पे मैंने 1000 किलो ऑफ कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा दिया. सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग अराउंड इन द मार्केट. सेकेंड थिंग, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, दे वांट टू गो कार्बन न्यूट्रल, उनको टैग्स चाहिए होते हैं बड़े बड़े दैट वी आर कार्बन न्यूट्रल कंपनी, बट व्हेन यू एक्चुअली गो ऑन ग्राउंड, या कोई बड़ी एजेंसी उसका जब ऑडिट करती है, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि यार उसने ये पॉइंट तो दिखाया ही नहीं था, उसने दे मिस्ड आउट दिस पर्टिकुलर थिंग, और दे आर नॉट शोइंग द अमाउंट ऑफ फुटप्रिंट दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी, एंड दे आर हाइडिंग दैट थिंग कंप्लीटली, एंड दैट इज नॉट मिस्टेक ऑफ द कंपनी, बट दैट इज मिस्टेक ऑफ द कंसल्टेंट्स और समथिंग. और उसके भी दो रीजन होते हैं. एवरी टाइम इट इज नॉट डन आउट ऑफ पर्पस, बट समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है लैक ऑफ नॉलेज, एंड दे जस्ट डू इट. हमारे यहाँ फॉर्मल एजुकेशन विद एनवायरमेंट अब तक उतना मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है. सो वो भी एक पार्ट हो जाता है. और दूसरा पार्ट क्या हो जाता है कि सस्टेनेबिलिटी नाउअडेज इज अ बिजनेस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. अभी क्या हो जाता है कि इफ यू से एक रिसाइकल प्रोडक्ट और एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, तो अगर नॉर्मल प्रोडक्ट 1000 रुपए का मिल रहा है तो रिसाइकल प्रोडक्ट 2000 का मिलेगा. दैट इज अगेन अ कॉमन मिथ गोइंग अराउंड, राइट? एंड उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, दिस दैट. Basically you want to make more money out of it, that's the reason you are selling recycled product. But actually if you go to see, and if you actually establish the recycled or circular economy, so again वहाँ पे तो product cost कम हो जाना चाहिए. It should not be that high, the kind of hype it is being created, right? अगर मैं normal chair अगर 4000 की लेता हूँ तो मुझे recycled chair 3000 की पड़नी चाहिए. That is when it is supporting the economy, that is where you are actually doing something worthwhile. So ये सारे जो छोटे छोटे myths बना के रखे हैं, और ये जो एनवायरनमेंट के अराउंड एक बिजनेस स्ट्रक्चर बना के रखा है. नाउ ESG अभी एक हमारे पास नया फंडा है, उसमें भी देयर आर लाइक कंपनीज हैव टू फोकस ऑन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस दिस थिंग. सो उसमें भी देयर आर एनवायरमेंटल वाला जो पार्ट है, एंड उसमें भी बहुत सारे स्कैम्स वगैरह होते हैं कि कंपनीज आर practicing some green activities on the front end, but back end पे फिर कहीं ना कहीं से leakages है, and companies are not responsible 100% for that. So now if I'm a founder of my company, I have knowledge about environment. Now if I say कि मुझे कंप्यूटर का कुछ फिटिंग करना है, so if a guy comes, an IT expert comes and say this is how I have to do it, I'm going to listen to him, this is how I have to do it. Same goes with the, अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो मुझे बोलता है कि ये दवाई आपको खानी है, मैंने वो दवाई खानी है, I don't know whether that दवाई is right or wrong. But again,
there comes a point where I want to miss out something in my accounting and I say to my CA कि भाई ये मुझे इस तरह से दिखाना है, can you help me out? So ऐसी companies भी और वैसी companies भी है. So there are both kind of people, but in the end it is hampering the earth and in the end it's a scam. So वो personally I think is कि yes, there are a lot of scams going around and it can be avoided only and only by educating people more about the subject and less about you would say कि जो एक terminology है ना, sustainability is a good business और sustainability is a profit making futuristic business, ऐसा लोग आजकल बोलते हैं, उसको avoid करके why sustainability is needed, अगर हमने उस तरह के approach पे ज़्यादा focus किया तो I think that this can be reduced in a very very vast level. आज मुझे कोई पैसा offer करता है और मुझे कोई अगर बोलता है कि this is what you need to do, I'm not going to do that. I am personally going to reject it because I know the impact. We are entrepreneurs and we work for impact. We don't work for business. हमको balance sheet नहीं देखना है, हमको impact sheet देखना है कि what my activity is doing. So if everyone start thinking the same way, और ये सोच कब आएगी जब वो सोसाइटी में हम एक बीज बोएंगे, जब हम एक सीड डालेंगे कि your ethics, your values are everything that matters in the business of sustainability. Because you are soldier of the nature at this point in time. You are warrior of Mother Earth. So उस टाइम पे you have to be, यानी एक पुलिस वाला है वो रिश्वत भी खा सकता है बट वो ईमानदारी से उसकी ड्यूटी भी कर सकता है. कोई आके कल उसको 100 करोड़ रुपए भी दे सकता है कि भाई if some big personality is there, he is going to offer him 100 crores and say cut off this case, but this guy is like नहीं भाई, I won't do it and I am going to do my duty. That is how, जिस तरह से environmental policing जो हम बोलते हैं, अब वो policing भी गलत हो गई है कि people use this kind of tactics to extort money from corporates and all that will expose this off and all. So ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको अगर हम organize कर देते हैं, if a group of people say कि नहीं ठीक है, we are forming a society kind of a thing or we are forming some sort of thing and we are like कि हम सब मिलके एक प्रण लेते हैं कि हम ये करेंगे और हमारे साथ like minded जितने लोग हैं उनको हम जोड़ देंगे. So even in your company if something is happening, you are aware about the point, you can tell them this is wrong. You can raise your voice, this is wrong. So इस तरह से you can avoid scams and this तरह से scams हो भी रहे हैं. Can you give a few pointers for our viewers how to live sustainably or explain them about the social impact, long-term impacts that sustainability can bring about? Yes, so what a common man can do is start at your own place. आपके घर से शुरुआत करो, कुछ और मत करो, कचरा सेग्रीगेट करना शुरुआत करो, वहां से शुरुआत करो. एकदम इजी काम है. You don't have to go for solar fittings, you don't have to go for any other alterations. The first step you do is segregate your waste. You are going to contribute in a huge way. आज हमको ये लगता है कि then there is a question कि corporation is not collecting it in a segregated way. But if I want to start, my job is to take the first step. किसी ना किसी को तो शुरू करना पड़ेगा ना. तो आज मैं खुद शुरू करता हूँ. I start with waste. Then the second step what I do is if I'm capable enough, या मेरे पास वो क्षमता है, spending spree, I am capable of spending money. So what I'm going to do is this also saves your money. What I'm going to do is I'm going to switch to CFL or power saving bulbs and all. I'm going to switch to electric vehicles. I'm going to switch to public transport. Public transport में ऑटो रिक्शा नहीं आता है. Public transport में वो होता है. So generally what people tend to do is मैं ऑटो रिक्शा में जाता हूँ. I'm using public transport. Again that is a private public transport you are using. Use public transport जहाँ पे उतने ही fuel में 50 people are getting transported where you alone are consuming it. Avoid luxurious brands of clothings and all, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके जो एक environmental impact होता है, एक footprint होता है, बहुत ज़्यादा footprint पीछे जोड़ देना. अब if you see एक jeans को बनाने में कुछ बोलते हैं 500-700 लीटर पानी waste हो जाता है. So you just imagine कि ये छोटी-छोटी चीज़ें करने से, and the best thing what you can do is कि you can start taking down the pointers, like आप एक sheet of paper ले लेते हो और उसमें you start taking down the pointers कि भाई मैं कचरा मैंने सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया, देन मैंने ये सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया, देन मैंने ये सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया. एंड देयर आर सो मेनी ऑनलाइन आल्सो कैलकुलेटर्स अवेलेबल एंड वी आर आल्सो कमिंग अप विद अ कार्बन कैलकुलेटर. फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जस्ट लॉग इन करना है और आपने आपकी एक्टिविटीज उसमें नोट डाउन करनी है. इट्स अ फन. यानी आज कोई नॉट ओनली फ्रॉम दिस व्यूअर बट अक्रॉस द डोमेन कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये 10-15 मिनट 20 मिनट
किसी तरह के एंटरटेनमेंट में डालता नहीं होगा. इट कुड बी वीडियो, इट कुड बी सोशल मीडिया, इट कुड बी एनीथिंग. यू मस्ट बी हैविंग सम सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट? सो उस सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के बीच में 5 मिनट ये डाल दो वेर यू आर कैलकुलेटिंग योर कार्बन. वाई? आज हम इतने आलसी हो गए, आज हम इतने वो हो गए कि वी डोंट इवन गो फॉर आवर ओन मेडिकल एंड हेल्थ चेकअप, राइट? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं. सो व्हाई नॉट गो फॉर एनवायरमेंटल चेकअप where you actually are calculating the activities you do. जरूरी नहीं आप सब कर लो, एक लिस्ट बनाओ. मैंने एटलीस्ट 1 महीने में ये करना है, 1 महीना में सिर्फ सेग्रीगेट करूंगा वेस्ट और कुछ नहीं. नाउ आई ऑल्सो सॉ दिस क्वेश्चन इन द चैट अबाउट एयर कंडीशन. सो if you see at my place, हमने ऐसा करा है कि खिड़की में there are plants, you just stay there, the place is going to be cool all day round. It is also, air condition is also impacting your health and at the same time it is also impacting the environment. ऐसा नहीं है कि you need air condition, you are just in your comfort zone, you are not willing to walk out of it. कोई extreme places होती है जहाँ हजारों लोग एक साथ काम कर रहे हैं, कोई office area है जो pack है, that is a different story. Even there are solutions which are coming up now. But if you start implementing in your daily life, आपके घर से आप शुरुआत करते हो, so that is the most easiest thing to do. When I would say कि कुछ और रीजन की वजह से मत करो, अपने खुद के लिए करो, क्योंकि the moment you switch to sustainable lifestyle, you will start noticing. यानी आप जब वो एक लेंस उतारते हो ना, या फिर आप नया एक चश्मा पहनते हो, तो आपको सच्चाई दिखने लगती है. So when you start with one single practice, your brain, एक psychology है, your brain will start running in that direction. And when your brain starts running in that direction, आपने कुछ नहीं करना है, बस जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको प्रोसेस करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको प्रोसेस करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है. इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्या कर लेते हैं कि हम इंफॉर्मेशन बहुत जमा करते हैं. यार एजुकेशन सिस्टम उसी तरह से डिजाइन हुआ है कि यू नीड टू हैव लॉट ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, बट यू डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट. सो वो चीज हमने या क्लीनिंग केमिकल्स इम्पैक्ट, या दे आल्सो डू इम्पैक्ट. सो उसकी जगह पे भी देयर आर many organic options available across the market, very easy things to use, very cheap solutions to use. Or basically I personally don't use soap or shampoo or something, and I read this somewhere that a human body को ये कुछ चीजें चाहिए ही नहीं. हम हजारों सालों से कुछ यूज ही नहीं कर रहे, तो हमने पिछले 50 साल में 100 साल में यूज करना शुरू करा है, जस्ट बिकॉज ये एक बिजनेस हो गया था. सो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो सोसाइटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं. I'll give you a small example how. With that you will understand कि where we are heading. इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद एक बहुत बड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था. उस ग्रीन रिवॉल्यूशन को एकदम फ्लॉप हो गया था. अब वो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों आया था? वो किसी को हरित भारत में इंटरेस्ट था? नहीं. वो ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए आया था क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी यूएस में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जॉबलेस हो गई थी. उनके पास रॉ मटेरियल बहुत पड़ा था, उनको वो रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं यूज करना था. सो दे स्टार्टेड मेकिंग फर्टिलाइजर आउट ऑफ इट. अब वो फर्टिलाइजर दे बॉट इन इंडिया. किसी को फर्टिलाइजर में इंटरेस्ट नहीं था. क्यों? क्योंकि वी वर हैविंग सर्कुलर इकोनॉमी तब से. तो हर एक खेत में 2-3 गाय होती थी, उसके गोबर से, cow, bull, everything, उसके गोबर से they used to make their own compost, और वो compost pits वगैरह होते थे. So now if you find some traditional farms, एकदम pure traditional farms, you would be able to find it somewhere in the south या in some Gujarat kind of areas, या एकदम साउथ में अभी भी कल्चर हमारा काफी सारा एकदम strong है अभी भी. So if you go to south, you will see that kind of farming happening even today. So क्या हो जाता है कि वो गोबर था, उसको जरूरत ही नहीं थी. So उनको ये चीज समझ में आ गई. So then they bought in white revolution. White revolution में उन्होंने क्या करा? They replaced all our native kettles with imported and hybrid kettles. अब उसका जो एक पेट का डाइजेशन प्रोसेस था, इट्स अ सिंपल साइंस. वो डाइजेशन प्रोसेस की वजह से गोबर के अंदर वो बैक्टीरियाज होते थे which were able to give you high quality compost. Now they started giving you this kind of simple, उसमें कि एक गाय का नाम दे दो. We have this Jersey cow जो बहुत फेमस है, जो सबको पता है. सो दैट जर्सी काउ इज मेड यूजिंग नील गाय, वाइल्ड बोर माने रान डुक्कर जो होता है वो, एंड थर्ड वन इज उनका एक वहाँ का लोकल काउ था, वो तीनों को मिक्स करके बना. अब जो उसका दूध भी आता है, वो 25 लीटर दूध क्यों निकालता है, जहाँ ट्रेडिशनल गाय 7 लीटर 8 लीटर निकालता है? क्योंकि वो 20-20 बच्चे एक साथ होते हैं उसके.
So anyways, you are going to get that quantity, but again, it's a mammal with fat and not the mammal with muscle and intelligence, the kind of we have. So we need the milk which is close to our mother. We don't need the milk which is close to wild animal. So then we start consuming that milk. अब उसका बैक्टीरिया लेवल कम होने लगा, उसके जो गोबर की क्वालिटी थी वो कम हो गई, बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग प्रोसेस्ड इन दैट वे. एंड नाउ पूरे का पूरा फार्म खत्म हो गया एंड पूरे का पूरा दूध भी खत्म हो गया. अब क्या हो गया? You needed a fertilizer or a compost. आपने क्या करा? This company was already waiting on your doorstep with a bulk of urea. अब आपने यूरिया डालना था. अब आप सोचो, एक 5 एकड़ जमीन यानी ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट जगह हो गई. अब 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट जगह पे डालने के लिए मुझे कितना यूरिया लगने वाला है? सो मैं क्या करूंगा? गवर्नमेंट सब्सिडीज. सो अगेन दोस कंपनीज आर मेकिंग मनी विद द गवर्नमेंट का पैसा, एंड दैट गवर्नमेंट का पैसा कुड हैव बीन यूज्ड टू डेवलप बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर नेशन. सो आपने सस्टेनेबिलिटी को बाजू में रख के आपका खुद का खड्डा आपने खोद दिया. सो द डे आई से दैट आई एम गोइंग टू कंज्यूम ओनली ऑर्गेनिक फूड, you are not only saving your own health but you are also saving economy of the nation. और आज महंगा है, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन ये चीज बैलेंस्ड हो जाएगी. आज से 10 साल पहले देखने जाते थे तो सब लोग वही करते थे कि भाई ये गाड़ी बड़ी महंगी है, आज लोन पे गाड़ी, सब हर आदमी एसी वाली गाड़ी लेके घूम रहा है. 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले ये एक बहुत बड़ी लग्जरी थी. Only few people used to have vehicles, घर पे गाड़ी होना, घर पे बाइक होना. Now if you go to some small towns, आपको 4-4 एक्टिवा खड़े दिखेंगे because they don't have that kind of public transport का connectivity. तो आपको 4-4, 5-5 एक्टिवा खड़े होते दिखेंगे. It is a luxury, right? So rather than spending that amount of money for your kids, अगर आप छोटे टाउन्स में जाओगे तो वहाँ पे बच्चों के पास भी एक्टिवा होता है, तो एक्टिवा के बदले में give them a cycle and the 4,000, 5,000 that you are saving on your fuel, you can switch to organic and better lifestyle. मतलब it is just about the priority setting, right? I ride a electric bike. So I realized कि मैं 15-20 हज़ार रुपए महीने के बचा पा रहा हूँ मेरे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस में. So I am using that in some other way. So in a way क्या हो जाता है कि it is just setting your priorities right, setting your mindset right and doing things the right way. So सबको तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि start with small steps, start keeping in mind कि ये मेरी माँ है, वो अर्थ को ना, ये धरती को ना एक माँ की तरह देखना शुरू कर लो. आप लोगों को तकलीफ देना अपने आप कम कर दोगे.